Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod and welcome back to another lecture on differentiation. ये डिफ्रेंशिएशन की वीडियो सीरीज बेस्ड है क्लास 11th एंड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर एंड विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू MST-CET. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शंस, differentiation of implicit function, derivative of parametric function, differentiation of one function with respect to another function, and higher order derivatives. I hope you like this video and I hope the concept discussed in this video is helpful for you to understand the differentiation better. अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे so please comment below and I can make those videos for you. Thank you and keep watching. Okay, let's start our next class. We studied differentiation of last time we studied differentiation of standard trigonometric inverse functions, right? Okay, now the one we will be studying today is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation matlab how can we use log to make our differentiation simple. That's it, right? So हम लोगों को logarithm use करना है. Okay, now कैसे? Let's say we have a function y equal to x to the power n. Okay, we know the differentiation, हमें पता है इसका differentiation क्या है, but इसको what if वो टेक्निक हमें नहीं पता थी. So how can we tackle this problem? So what we can do is take log on both side. So हम क्या कर देंगे, log ले लेंगे both side, log y equal to log of x to the power n. तो हम इसको log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे. log y equal to n log x हो जाएगा. Okay, now we will take differentiation dy by dx both side. So d dx of log y equal to n d dx of log x, right? Can we do that? Now how can we differentiate something which is not x with x? Right? हमें पता है d dx of x स्क्वायर ले सकता हूं मैं, लेकिन मुझे d dx of मैं d dx of y भी ले सकता हूं तो dy by dx हो जाएगा, लेकिन मुझे d dx of log y लेना है. How will I do that? Exactly. So हमें इसको dy by dx equal to dy by du into du by dx वाला रूल लगाना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग log y को पहले क्या करेंगे, d log y को dy से ही डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन dy को dx से डिफरेंशिएट करेंगे. सो हमें मिल गया dy by du and du by dx, right? So let's do that. d dx of log y equal to n बाहर इसलिए लिया क्योंकि n कांस्टेंट है, वो it has nothing to do with differentiation. We cannot differentiate a constant. Constant का differentiation हमेशा जीरो ही आता है, right? So ये n बाहर निकल सकता है उस टर्म में से because differentiation does not apply to constant. Okay, now हम लोग इसको करेंगे log y का differentiation with respect to y which is 1 by y and then y का differentiation with respect to x dy by dx. So 1 by y dy by dx, right, equal to n into d
d dx of log x, which is simple, 1 by x, right? एंड अगर हम वही करेंगे, अरे मैंने x लिया, then I'll differentiate x, dx by dx, which is 1. So that's why we don't write dx by dx. Okay. So हमें dy by dx क्या मिला? dy by dx equal to, ये जो y है वो इधर चल जाएगा, y times n times 1 by x. y क्या था? x to the power n. So x to the power n into 1 by x, which is n into x to the power n minus 1. आ गया सेम फॉर्मूला, but we used log, है ना? सो जो एकदम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन था उसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया हमने, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव किया था हमने, राइट? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालने का. सो यहां हमने लॉगरिथम यूज करके सिंपल कर दिया. सो दिस इज हाउ वी यूज लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन. क्यों? हमको सिंपल करना है कॉम्प्लेक्स चीजों को. लॉगरिथम सिंपल कर देता है, स्पेशली जो पावर्स में होते हैं. ओके ओके. So now we'll do one more quick example. Okay. So let y equal to let me check कौन सा वाला बेटर रहेगा क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए. फर्स्ट वन. Okay, let's take e to the power x to the power 2 and into tan of x to the power x by 2 upon 1 plus x to the power 1 plus x square to the power 3 by 2 cos cube x. Now we need to find dy by dx. Now it is not simple. अगर सिर्फ y इक्वल टू e इंटू tan x अगर होता तो हम लोग u इंटू v वाला रूल लगा लेते, या फिर e टू द पावर x इंटू tan x अगर होता तो डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट टू वेरिएबल्स, u dv by dx प्लस v du by dx, राइट? u इंटू v वाला याद है? सो वो सिंपली कर सकते थे यहां, बट वो नहीं लगा सकते हम लोग क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये. ओके. सो इसको सिंप्लीफाई करना है. सो इसको सिंप्लीफाई करने का एक आसान तरीका है लॉग यूज करना. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. log y इक्वल टू log ऑफ e to the power x square into tan x to the power x by 2 upon 1 plus x square to the power 3 by 2 into cos cube x. ओके. सो पहले तो क्या करेंगे, log अगर a by b है तो इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे हम. क्या हो जाएगा? log a minus log b. we'll use that. तो log e to the power x square into tan x to the power x by 2 minus log 1 plus x square to the power 3 by 2 into cos cube x, right? Now again we'll apply log का identity here. So वो हो जाएगा log of e to the power x square plus log of tan x to the power x by 2 minus log of 1 plus x square to the power 3 by 2, और ये माइनस अंदर भी जाएगा
सो माइनस लॉग cos क्यूब x. cos क्यूब x मतलब cos x होल क्यूब, राइट? उसके वेरिएबल x का क्यूब नहीं है, वो cos x का होल क्यूब है, cos क्यूब x, राइट? तो अभी इन्हें हम लोग फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा इनटू लॉग ई प्लस एक्स बाय टू लॉग tan x माइनस 3/2 log 1 plus x square minus 3 times log cos x, right? Simple. This is log y. Right? ओके, यहां तक आ गया। नाउ हमने जितना सिंप्लीफाई होना था, करना था, कर सकते थे, उतना सब कर लिया सिंप्लीफाई, राइट? एक इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है, राइट? लेकिन इक्वेशन थोड़ा लंबा हो जाता है इसमें। नाउ लेट्स टेक डिफरेंशिएशन. Let's differentiate with respect to x. Let's differentiate this function which is log y equal to something. Let's differentiate with respect to x. मतलब हमें क्या देखना है? जैसे मैंने पहले बोला था, differentiate with respect to x मतलब let's understand how the function is changing when x is changing. That's called let's differentiate with respect to x. देखते हैं उसमें difference, वो फंक्शन में डिफरेंस देखते हैं। अगर हम लोग x को डिफरेंट कर दे, x में थोड़ा चेंजेस कर दे, x को एक x और दूसरा x पे देखे, राइट? लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, वो जो डिफरेंट x है ना, वो बहुत पास पास में होते हैं। सो हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर x हो जाता है, आजू बाजू में। यस और नो? राइट? ओके। So now let's differentiate. d by dx of log y equal to d by dx of x square into log e. log e बेस e होता है ये, अगर बेस दिया नहीं है तो बेस e है, और log a बेस a is 1, याद है? log a बेस a is 1, log e बेस e is 1. ओके, तो वो 1 हो गया, प्लस d dx of x by 2 into log tan x माइनस 3/2 बाहर d dx of log of 1 plus x square माइनस 3 d dx of log cos x. ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा था, du by dy by du by dx लगा के पहले log y का डिफरेंशिएट कर लेगा 1/y, और फिर उसके बाद y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx इक्वल टू d dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, प्लस अभी यहाँ पे दो है, u इंटू v हो रहा है, x बाय 2 एक फंक्शन है, log ऑफ tan x दूसरा फंक्शन है, राइट? तो हम लोग u इंटू v रूल लगाएंगे, ओके? तो हाँ बोलो, ये देखो x बाय 2 एंड log ऑफ tan x. log ऑफ tan x एक टर्म है और x बाय 2 एक टर्म है, दो फंक्शन हो गए, है ना? राइट? सो u इंटू v लगाएंगे उसमें अभी रूल, सो यस x, हाँ एग्जैक्टली, x बाय 1/2 पूरा बाहर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर 1/2 x के साथ रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x बाय 2 एक फंक्शन हो गया, log ऑफ tan x दूसरा फंक्शन हो गया, राइट? दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है वहां पे, यस और नो? ये क्लियर है, राइट? सो x बाय 2 एंड देन d dv by dx, तो v क्या है, log ऑफ tan x,
लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, secant स्क्वायर x, राइट। तो ये हो गया पहली टर्म। दूसरी टर्म log of tan x बाहर कॉमन, and then differentiation of x by 2 will be 1/2, right? Okay, then the third term minus 3/2 d dx of log of 1 plus x square। तो पहले तो 1 plus x square के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेंगे, और फिर 1 plus x square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, राइट। देखो यहाँ u और v नहीं है, यहाँ एक ही फंक्शन है, उसका कांस्टेंट है 3/2, कोएफिशिएंट है वो, it's a constant, okay। And then the last one minus 3 d dx of log of cos x, log of cos x, log of x, 1/x 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव minus sin x, minus sin x, okay, हो गया। सो हम इसको रीअरेंज करेंगे अच्छे से, 2x प्लस x बाय 2 tan का हो जाएगा cot x इंटू secant स्क्वायर x स्क्वायर x प्लस 1/2 log of tan x, एंड देन माइनस 2 कट जाएगा, 3x by 1 plus x square, and then minus minus plus 3 tan x, right? Now ये है 1/y into dy by dx का वैल्यू, dy by dx का नहीं, dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू y इंटू दैट फंक्शन, राइट। और y क्या है, y इज जो हमारा पहले क्वेश्चन था, e to the power x square इंटू tan of x to the power x by 2 upon 1 plus x square to the power 3/2 into cos cube x। ये हो गया तुम्हारा y multiplied by 2x plus x by 2 cot x sec square x plus 1/2 log of tan x minus 3x by 1 plus x square plus 3 tan x। This is your final answer. So एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने लॉगरिथम से सिंप्लीफाई किया, एंड लॉगरिथम से सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये उसको डिफरेंशिएट कर पाए, लेकिन उसका आंसर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, बट लकीली डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो लॉगरिथम यूज करने से सिंपल हो गई, राइट। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लॉगरिथम के रूल्स पता होने चाहिए कि लॉगरिथम को कैसा तोड़ मरोड़ के कैसा यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। हाउ कैन वी यूज लॉगरिथम, वो पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, सो 1.3.2 इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा है ना, कभी कभी हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और x इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ y लिख सकते हैं। मतलब वी कैन राइट y इन द फॉर्म ऑफ x, वी कैन राइट x इन द फॉर्म ऑफ y। सिंपल इक्वेशन है ना। तो y इक्वल टू साइन x अगर है
तो मैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकता हूं, तो सिंपल फंक्शन हो गया। बट देर आर सर्टन फंक्शंस जो हम ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते, x एंड y को अलग अलग नहीं कर सकते, x एंड y एक साथ आ जाते हैं। ये हो गया एक्सप्लिसिट, मतलब एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकना, दूसरे को पहले के फॉर्म में लिख सकना, ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फॉर्म। अभी हमें पढ़ना है एक्सप्लिसिट का, तो हमें करते आता है, वो तो अभी तक हम एक्सप्लिसिट का ही पढ़ रहे थे, राइट। लेकिन ऐसे फंक्शन जो एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते, दोज आर इम्प्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहीं का लेते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, विच इज x to the power 5 plus x into y cube plus x square y plus y to the power 4 equal to 4. Can you separate x and y? Can you write y in the form of x? Can you write x in the form of y? ट्राई करके देखो आप। Can you write y equal to something, x equal to something? x इक्वल टू सारा y के फॉर्म में होना चाहिए और y इक्वल टू सारा x के फॉर्म में होना चाहिए। और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे इसका dy बाई डी एक्स? बहुत ही सिंपल है। इसमें एक अजम्पशन करना होगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ट्राई कर रहे होंगे उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने का, नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ यू सिंपली, आपको क्या करना है, उसके पहले एक अजम्पशन है ऐसा कि ये फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर लिख नहीं पा रहे, फिर भी इसमें एक ऐसा फंक्शन है y जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल है बाय x। y एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है बाय x, और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अज्यूम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर देंगे। कभी u बाई वी रूल लगाना पड़े, v इंटू यू इंटू वी रूल लगाना पड़े, लगा, बेस्ड ऑन फंक्शन जैसा है, राइट। तो उसमें x भी है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फंक्शन y भी है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ f x, मतलब y इक्वल टू f ऑफ x, जिसका dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है। That is y is a differentiable function of x, right? और x क्या हो गया इसमें, वेरिएबल। तो अभी हमें सिंपल है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू के, राइट। और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dy बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म्स आती है वो एक साइड में ले लेना है और बाकी सारा दूसरे साइड में ले जाना है। दैट्स इट, यू फाउंड dy बाई डी एक्स। Now let's see how we can do it. Simple है बहुत, let's see how we can do. Let's rewrite x to the power 5 xy cube x square y plus y to the power 4 equal to 4. Let's differentiate with respect to x. Yes? Of course, when you are differentiating, जब differentiate कर रहे हैं तो कोई टर्म को छोड़ नहीं सकते ना, you are differentiating the entire thing, पूरा दोनों साइड, राइट। सो क्या हो जाएगा, d dx of x to the power 5 plus d dx of x into y cube plus
d dx of x square y plus d dx of y to the power 4 equal to d dx of 4. दिस इज द फर्स्ट सिंपल स्टेप, राइट. फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे. पहला टर्म सिंपल है 5x टू द पावर 4 प्लस दूसरा हमें लगाना पड़ेगा u इंटू वी. x इज u, y इज v, y क्यूब इज v, राइट. तो क्या हो जाएगा x d y क्यूब बाय dx, dy क्यूब बाय dx, राइट, प्लस y क्यूब dx बाय dx, राइट. पहले क्या हुआ u इंटू dv बाय dx, v इंटू du बाय dx, राइट. ये हो गया एक. अभी है तीसरी टर्म अगेन x स्क्वायर dy बाय dx प्लस y dx स्क्वायर बाय dx. ये समझ रहा है आपको. अगेन u dv बाय dx प्लस v du बाय dx. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. लास्ट वाला, गुड, लास्ट वाला dv टू द पावर 4 बाय dx. सो v टू द पावर 4 को हम लोग लेट्स अज्यूम x टू द पावर 4, उसका डिफरेंशिएशन 4y टू द पावर 3. नाउ वी अज्यूम्ड y एज x, सो y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट. dy बाय dx. सो dy टू द पावर 4 dx का डिफरेंशिएशन क्या आया 4y क्यूब dy बाय dx, राइट, इक्वल टू ये जो है d4 बाय dx ये 0 है, राइट. अगेन let's simplify more further. 5x टू द पावर 4 प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जैसे हमने इसका किया 3y स्क्वायर dy बाय dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट. हमें ये कौन सा फॉर्म हो गया dy बाय du इंटू du बाय dx, राइट. फिर प्लस y क्यूब dx बाय dx तो 1 है, प्लस x स्क्वायर dy बाय dx वैसा ही रहेगा, प्लस y इंटू dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इंटू dx बाय dx विच इज 1, राइट, प्लस 4y क्यूब dy बाय dx इक्वल टू 0, राइट. ओके, अभी dy बाय dx वाली टर्म पहले कॉमन ले लेते हैं. क्या है 3xy स्क्वायर ये वाला प्लस x स्क्वायर ये वाला प्लस 4y क्यूब ये वाला हो गया इक्वल टू बाकी की टर्म उधर भेज देंगे माइनस ऑफ 5x टू द पावर 4 ये हो गया प्लस y क्यूब. मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर तो प्लस y क्यूब होगा प्लस 2xy. So dy by dx will be minus of 5x to the power 4 plus y cube plus 2xy upon 3xy square plus x square plus 4y cube. Is that the correct answer? Yes. So implicit function को हमने एक सिंपल तरीके से सॉल्व किया. अगर y को x के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, x को y के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, दैट मीन्स डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ तो हो रहा होगा, एक्सप्लिसिटली लिख नहीं पा रहे हम लोग, है ना. देयर इज समथिंग. तो उनमें भी हम कुछ नोन आइडेंटिटीज यूज करके वी वर एबल टू सॉल्व दैट. इसमें कोई क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट? इसमें काफी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है. ट्राई टू सॉल्व ऑल दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड देन इफ यू हैव एनी इश्यूज लेट मी नो. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन. ट्रिकी है थोड़ा, बट एक बार समझ गया ना
तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट? अभी तक जितने भी डेरिवेटिव्स आपने सीखे हैं दैट इज नॉट डिफिकल्ट। जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे आईआईटी में, जेडब्ल्यू में या फिर सीईटी में, उनका डिफिकल्टी लेवल सिर्फ हाउ कॉम्प्लेक्स द इक्वेशन बिकम्स उस पे हो सकता है, और कितने सारे आइडेंटिटीज और कितने सारी ट्रिक्स तुम्हें यूज करने होंगे एट अ सिंगल टाइम, दैट कैन वेरी। बट अदर देन दैट, साइंस बिहाइंड डिफरेंशिएशन इज सेम व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। साइंस बिहाइंड बोलना चाहिए या मैथमेटिक्स बिहाइंड डिफरेंशिएशन बोलना चाहिए? Derivatives of parametric function. ठीक है, सो इसमें कैसा है, आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले क्लास में x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट? और अब मैं बोलूं एक ही पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है ये, है ना? अब मैं बोलूं मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? इसमें तो एक पैरामीटर है थीटा, थीटा इज व्हाट? पैरामीटर। इसका क्या करूं मैं, और x और y को एक दूसरे से रिलेट कैसे करूं? इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाय r, एंड दैट सेम थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y बाय r। सो हमें एक इक्वेशन मिल गया, कॉस इनवर्स x बाय r माइनस साइन इनवर्स y बाय r इक्वल टू 0। ये हमें फंक्शन मिल गया। अभी निकालो dy बाई डी एक्स, पसीने छूट जाएंगे, राइट? लेकिन मुझे ये सब अगर करना नहीं है, मुझे और सिंपल करना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए हमको पैरामीट्रिक फंक्शन का एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, राइट? अगर मैं आपको बोलूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा अगर होता है, सिंपल डिवीजन dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा होता है, तो आप सीधा dy बाई डी थीटा इससे निकाल लोगे। यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ थीटा एंड देन यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ थीटा, तो आपको ये क्या देगा? dx बाई डी थीटा देगा, ये क्या देगा? dy बाई डी थीटा दे देगा, राइट? और जो भी वैल्यू है एक दूसरे को डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स मिल गया, राइट? सो लेट्स गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस, कि अगर हमें कोई इक्वेशन, कोई फंक्शंस ऐसे फॉर्म में दिए हैं इंस्टेड ऑफ दिस, लेकिन हमें ये फॉर्म में भी सॉल्व नहीं करना है, इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर अस, हमको उसको सिंपल ही रहने देना है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे। सो व्हाट विल आई डू? ओके, सो आई विल यूज दिस वन। नाउ आई नीड टू प्रूव दिस वन एग्जिस्ट, ये जो है ये सही में एग्जिस्ट करता है, उसका प्रूफ देखना है हमें, राइट? सो लेट्स डू इट। लेट्स टेक x इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ t, मैंने थीटा लिया था, फंक्शन ऑफ थीटा, x इक्वल टू r sin और cos थीटा, दैट वाज फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ t, राइट? कोई भी t के फॉर्म में, x इक्वल टी स्क्वायर प्लस एनीथिंग और x इक्वल टू cos t, व्हाटएवर। इसमें पैरामीटर कौन सा है? जो कि वेरिएबल ही है, बट उसको पैरामीटर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है और y क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जो भी उनके अलावा वेरिएबल आ रहा है उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर उसको फंक्शन बाय एन इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल t, दे ऑल्सो कॉल इट इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल t,
then that intermediating variable t is known as parameter. Okay, parameter, fine. So x equal to f of t, y equal to g of t. Okay. So if I change uh, the parameter t slightly, then x will also change slightly and y will also change slightly, right? अगर मैं x का जो पैरामीटर t है उसको थोड़ा चेंज करूंगा तो x में भी चेंजेस आएगा बिकॉज x is function of t, y is function of t, so y will also change if I change t. So if I change t to delta t, मतलब या फिर if I change t1 to t2, that means मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा टी चेंज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट? आई एम डूइंग डेल्टा टी चेंज. उस वैसे ही x1 से x2 हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा x हो गया, x में चेंज. वैसे ही t चेंज हुआ तो y1 से y2 हो जाएगा, अगेन वो चेंज हो गया डेल्टा y, राइट? हाँ, तो मैं इस चेंज को सिंपल भाषा में लिख सकता हूं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर मैंने ले लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा थीटा. ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? नंबर सिंपल. अगर मैं बोलूं 4/5 इक्वल टू 4/3 upon 5/3, I can write like this, right? So मैंने क्या किया, जो चेंज है ना उनको ही ऐसे लिख दिया, राइट? लेकिन यू हैव टू मेक श्योर, अभी ये जो थीटा है एक्चुअली हम थीटा नहीं ले रहे, हम लोग टी ले रहे हैं, मैं भूल गया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट? ओके, नाउ एक बात ध्यान में रखनी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैन नॉट बी जीरो डिनोमिनेटर में, दैट कैन नॉट बी जीरो. ओके, तो लेट्स टेक डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टी वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट? नाउ ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लेकिन इसमें तो टी कहीं है ही नहीं, तो हाउ विल वी मेक सेंस ऑफ इट? तो मुझे पता है अगर डेल्टा टी से डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन अगर डेल्टा टी ही एकदम जीरो के बराबर है, बहुत ही छोटा चेंज है, तो डेल्टा एक्स में भी बहुत ही छोटा चेंज होगा, राइट? सिंपल लॉजिकल थिंग. सो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो के जगह में डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो यूज कर सकता हूं, राइट? क्योंकि बहुत ही छोटे चेंज है, इतने छोटे चेंज है, राइट? सो देन आई कैन राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, delta y upon delta x. Instead of delta t, I wrote delta x tends to 0 equal to limit delta t tends to 0, delta y by delta t upon limit delta t tends to 0, delta x upon delta t. Now we know when the change is very small, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम dy by dx बोलते हैं. dy by dx, it exists when delta x is very small. ओके, ये हो जाएगा dy by dt upon dx by dt. So we got it.
Now, again, differentiation of x with respect to t cannot be 0. Okay? Yeah. Any question? कितना सिंपल डेरिवेटिव है ना? हमें ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है? देखो, y है f of t, x है g of t, x और y एक दूसरे के फॉर्म में पता भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये यूज कर लेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल काम कर दिया इस इक्वेशन ने हमारा। एग्जैक्टली राइट। सो वंस एक बार आपको पता है ये यूज कैसे करना है, इनके न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल सिंपल लेके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल, x इक्वल टू a t टू द पावर 4 and then y equal to 2a t to the power 2. Okay. ये देखो, इसमें जो a है that is coefficient, t is the parameter. Okay. Good question, but that is the thing. वहां पे उन्होंने देना चाहिए t is the parameter, x is the variable, y is the differentiating. राइट, यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने। एनीवेज, अभी हमें निकालना है dy by dx। कैसे निकालेंगे? dy by dt अपॉन dx by dt करेंगे। now how can we find dy by dt? y से 2at स्क्वायर से हमें अगर dy by dt फाइंड करना है, so differentiate with respect to t on both side. So 2a into 2t, right, equal to 480. now हमें dx by dt चाहिए, कैसे निकालेंगे? x equal to at to the power 4 dx by dt equal to 4at cube. And what is dy by dx? dy by dt upon dx by dt equal to 4at upon 4at cube, 4a 4a गया, t square, t to the power -2 या फिर 1 by t square, whichever you prefer. Okay, now there are more complex numericals also, right? बट हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है या फिर सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, PYQs है, we will do at the end of the chapter. हम लोग let's try to understand the theory as quick and as much as possible, and then we will come back and do some difficult numericals also. Okay. So another section, by the way, any question in this part? Okay. Now another thing is differentiation of one function with respect to another function. Differentiation of one function with respect to another function. Respect to another function. ठीक है? So हमें सिंपल निकालना है dy by dx, लेकिन हमको बहुत सिंपल ढंग से फंक्शंस अगर दिए नहीं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? राइट, अगर मुझे दिया है u इक्वल टू f of x एंड v इक्वल टू g of x, राइट, दो फंक्शन दिए। अभी
मुझे निकालना है डी यू बाय डी वी। तो जैसे हमने पैरामीटर का किया था पहले वैसा ही करना है। क्या हो जाएगा ये? डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स। नो रॉकेट साइंस, राइट। डी यू बाई डी एक्स क्या, डिफ्रेंशिएट कर दो u को, डी वी बाई डी एक्स क्या, v को डिफ्रेंशिएट कर दो, और डी यू बाई डी वी निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब पैरामीटर t दिया है, राइट। लेट्स डू क्विक, लेट्स डू वेरी क्विक न्यूमेरिकल। u equal to 7 to the power x and v equal to x to the power 7. We need to find du by dx, which is what? du by dv. We need to find du by dv, which is du by dx upon dv by dx. Okay, so du by dx और dv by dx निकालना है। du by dx निकाल लेते हैं पहले। du by dx is equal to d dx of 7 to the power x. कैसे निकालेंगे? a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? a to the power x log a, right? And then let's find dv by dx. dv by dx क्या हो जाएगा? x to the power 7, 7x to the power 6, right? तो du by dv क्या हो जाएगा? 7x log 7 upon 7x to the power 6. That's it. जैसे पैरामीट्रिक किया था वैसा ये कर लिया। क्या क्या? नहीं नहीं, ओके, लास्ट सेक्शन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लास्ट सेक्शन। एंड देन आई थिंक नो, आई थिंक देयर इज वन मोर, लास्ट टू, nth डिफरेंशिएशन भी है, dn y upon dx to the power dxn, right? Okay, let's do the simple one quickly. Higher order derivatives. Higher order derivatives. अगर मुझे कोई फंक्शन दिया है y equal to f of x, इसका पहला डेरिवेटिव क्या है? y डैश इक्वल टू, उसको हम लोग dy by dx भी लिखते हैं, इक्वल टू f डैश x, राइट? मतलब dy by dx को मैं d to the power 1 dx to the power 1, राइट? जो d dx है, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर जो d है वो है d, मतलब चेंज ऑफ व्हाट? y। dx क्या है? चेंज ऑफ x, ओके। देन नाउ मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना है y डैश का, तो y डबल डैश इक्वल टू d dx ऑफ dy by dx, इसको लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x, राइट? अभी इसका और डिफरेंशिएट करना है, y डैश इक्वल टू f डबल डैश x, अगर ये फंक्शन है इसको और डिफरेंशिएट करना है तो मैं बोलूंगा y ट्रिपल डैश इंटू डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, एक ही ऐड हो जाएगा, y ट्रिपल डैश x, ओके, एंड इट गोज ऑन, ओके। अभी डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, f डैश x का डेफिनेशन क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट? ये हो गया dy by dx का डेफिनेशन।
अभी मुझे एफ डबल डैश एक्स चाहिए, तो ध्यान दो इधर, अभी एफ डबल डैश एक्स किसके भरोसे निकलता है, एफ डैश एक्स के भरोसे निकलता है, राइट। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश ए अपॉन एच equal to d square y by dx square. This is the definition. Okay, यहाँ ध्यान दो, right? There is f dash x, f dash a plus h and f dash a, right? और ऐसे करते करते हम लोग nth डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे, y to the power n dny upon dx to the power n is equal to f of n x. Okay. एक क्विक एग्जांपल लेते हैं. What if y equal to f of x equal to x cube minus 3, x cube minus x. इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है. So differentiate with respect to x. y dash equal to f dash x equal to 3x square minus 1. Again differentiate with respect to x. Y double dash equal to f double dash x equal to 6x minus 0. Again let's differentiate with respect to x. Y triple dash x equal to f triple dash x equal to 6. Again differentiate with respect to x. Y fourth differentiation equal to 0. Right? Okay. Any question about this? This is very simple. The only इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है पता है, बहुत सारे जब टर्म्स आते हैं ना, हर एक टर्म को अच्छे से ध्यान से लिखना, वो सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है. वरना हम गड़बड़ कर देते हैं. एक्स पावर में लिखना था, बाजू में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, पूरा न्यूमेरिकल गड़बड़ होता, राइट. हाँ, अभी हमें निकालना है nth डिफरेंशिएशन. हमने अभी 3-4 निकाल लिए. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बार बार ना डिफरेंशिएशन नहीं निकालना, मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला जो साइन एक्स का nth डिफरेंशिएशन बता दे मुझे. तो वो n में मैं वैल्यू डाल दूंगा. मैं क्या करूंगा, अगर nth डिफरेंशिएशन का मुझे फॉर्मूला पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू मैं ले लूंगा 3. फॉर्मूला मुझे पता है. थर्ड डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं निकाल लूंगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. उसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए ये वाला, तो वो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ, हाँ, साइन एक्स से ही स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स. अभी d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n के लिए हमें एक एक dy बाई डी एक्स निकालते रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं. कोई पैटर्न मुझे मिल रहा है क्या. अगर मुझे पैटर्न मिल गया तो मैं n डाल दूंगा वहां पे, मिल गया मुझे इक्वेशन. तो हम लोग पैटर्न देखने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, राइट. कॉस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 90 पाई बाई 2 प्लस एक्स. साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स, राइट. ओके, देन ये जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 90 प्लस एक्स, आई डिफरेंशिएट दैट अगेन. d2y by dx square will be साइन का डिफरेंशिएशन cos
पाई बाय 2 प्लस एक्स, और पाई बाय 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1. नाउ cos पाई बाय 2 प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ऐसे विच क्या क्या नहीं, मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया यहां पे, तो वो क्या आ गया cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, एंड देन ये क्या मिला मुझे cos थीटा, तो मैंने क्या लिखा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा. राइट, ये क्लियर? या तो साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल साइन 2 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस एक्स. आप बोलोगे भैया ये 2 कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, नहीं करेंगे क्योंकि यहां देखो पैटर्न दिखने लग गया है. राइट, चलो तीसरा करते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग दिस वन, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, और थीटा जो कि 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 1 है. राइट, सो आई जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 1. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं साइन ऑफ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो 3 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस एक्स. तो दिख रहा है पैटर्न, यहां 1 था, यहां 2, यहां 3. राइट, तो मतलब मैं सिंपली लिख सकता हूं डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू साइन ऑफ, क्या होगा साइन ऑफ पैटर्न के हिसाब से क्या होगा, एग्जैक्टली एन पाई बाय 2 प्लस एक्स. अभी अगर ये इक्वेशन आपको पता है और मैंने आपको बोला मुझे d टू द पावर 7 y अपॉन डी एक्स टू द पावर 7 निकालना है, किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो आप डिफरेंशिएशन निकालते रहोगे या सिंपली ये यूज कर लोगे? क्या हो जाएगा ये साइन ऑफ 7 पाई बाय 2 प्लस एक्स, डन, यू हैव द आंसर. सो सिंपली देयर आर अदर एग्जांपल्स, y इक्वल टू log x, उसका d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n क्या होता है ना? राइट, so I think we have covered the entire differentiation का 11th and 12th का theory part of Maharashtra board. अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग we will try, if आप लोगों को solve numerical difficult लग रहे हैं, we will try solve numerical or we will go directly to PYQ. Okay, let's see, let me know नेक्स्ट क्लास में आपको अगर solve numerical पे थोड़ा ध्यान देना है या फिर हम लोग सीधे PYQ पे जा सकते हैं, लास्ट CET में लास्ट ईयर क्या आया था. We can try to solve that. Okay, we'll do some formulas also before that कि कौन से formulas है इस चैप्टर में से हमें मिल रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स बना पाओ उनके खुद के, तो फॉर्मूला देख लेंगे एंड देन विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल. ओके, चलो, थैंक यू.